So we are starting. Welcome to you all. Our today's virtual lab, as we have promised, on DNA extraction and PCR. This lab is being organized with the collaborations of Indian Agricultural Research Institute and Banaras Hindu University on 6 and 9 February. Not 8, we will discuss it later. This program is being organized under DBT Star College scheme, which has been granted to the Botany and Zoology Department of Shri Tikaram Kanya Mahavidyalaya, Aligarh. This scheme is targeting on the capacity building of both the departments, and students will be benefited by in the practical exercises, in the theoretical concepts and developments, and devising standard curriculum and practical protocols, as well as library facilities. We are going to purchase the books also. So this is only for the benefit of student, and we have to conduct the various programs under this scheme, which includes webinars, training programs, hands-on trainings, and virtual labs on the different molecular biology techniques. And in this series only today we are organizing this program. The programs which we have already organized we have started from the month of June, and since it was a COVID time, all the programs were of online category. The first was related to the COVID, and it was boosting immunity with Ayurveda, a possible game changer. It was organized with the Center of Civilizational Studies, and our speaker was Mr. Ravi Shankar. It was a very successful webinar and very interesting too. Then we organized online activities, Corona and eye care, since it was long that online classes were started and eyes were strained. So we have contacted Dr. Riddhi Arya, an eye ophthalmologist from near Nirmal Eye Care Institute, Rishikesh, and she has very in detail and very lucidly discussed all the aspects of Corona, as well as how the eyes are affected and what precautions we can take. This too was a very successful event. Then we have conducted some online knowledge series, and these were targeted on the biotechnology and the practical curriculum of the UG from the Agra University. We have organized quizzes also on biodiversity and environment. And we are organizing various mini projects based on the diversities, based on the pollution studies, based on the recombinant DNA technologies, based on biostats, based on medicinal plants, based on pollution ecology. And from the various aspects of the curriculum, students are very excitedly and very enthusiastically preparing the projects since the last 5 years. And this year we are emphasizing more. And these projects some will be a type of mini research project, and some will be like the PowerPoint presentation to improve the communication skills of the student. And the students are doing well and they are taking active interest. And then today, in the line of virtual labs, we have come to the PCR and DNA extraction. For the DNA extraction, I think our students are familiar with the DNA extraction techniques, crude DNA extraction techniques from the plant tissue. I think BSc third year students are well familiar with. And the DNA extraction from plasmid DNA, which we are going to discuss, is they are not performing. So इसको हमने जो टारगेट किया है वो इस बात पर किया है कि जो बच्चे एक्सपेरिमेंट क्लास में नहीं कर पा रहे हैं उनको वो वर्चुअल लैब से कम उनका एक एक्सपोजर ले सकें, और जब कोरोना पीरियड अगर खत्म होता है एग्जाम से पहले तो हम एक ऑफलाइन वर्कशॉप उस पर अरेंज कर सके, क्योंकि इस बार हम कोई भी ऑफलाइन वर्कशॉप कोरोना की वजह से अरेंज नहीं कर पाए. इसके लिए हमारा कोलैबोरेशन रहा है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर प्रीतेश से. डॉक्टर प्रीतेश आज पूरा उनका सेशन चलेगा जिसमें वो बताएंगी कि कैसे प्लाज्मिड डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है और कैसे जो है पीसीआर वर्क करता है, जो कि हम आपको वीडियो के उससे दिखाएंगे मीडियम से. और पीसीआर जो कि एक निकनेम जिसका है कि जो फोटोकॉपियर है, जिस तरह से एक कॉपी हम बनाते हैं डीएनए उसमें मशीन में डाल के मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, उसी तरीके से पीसीआर से हम एक डीएनए फ्रेगमेंट से मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं. तो इसका निकनेम ही ये है कि हम इससे फोटोकॉपी कर सकते हैं. इसका एप्लीकेशन बाकी सब बातें प्रीतेश बताएंगी. तो इसके और एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं जो आप देख रहे हैं जीन क्लोनिंग में,
पैथोजन आइडेंटिफिकेशन में, ड्रग डिस्कवरी में, जीन एक्सप्रेशन स्टडीज में, जीन सीक्वेंसिंग में, डिजीज आइडेंटिफिकेशन में, जीनोटाइपिंग में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, और जैसा इस बार आपने देखा कोरोना में आरटीपीसीआर एक डायग्नोस्टिक टूल के रूप में बहुत पॉपुलर हुआ, और हर एक को, कम से कम जो जानता भी था और जो नहीं भी जानता था, सबको आरटीपीसीआर का नाम याद हो गया। आरटीपीसीआर का लेक्चर हमारा डॉक्टर रिचार्या लेंगी, आई थिंक ऑन 9th of February, as per the plan. 8th is postponed, and today we will discuss the simple PCR techniques and isolation of DNA by Dr. Pritesh. Now it is my turn to introduce Dr. Pritesh. It is very heartening, and we are very fortunate. सब बच्चे इसको ध्यान से सुने. Dr. Pritesh is our alumni, and she has done her BSc from this college as itself in 1998. She has done her PG in 2001 from Agra College, Agra. She has done her doctorate in 2007 from RBS College, Agra. Her discipline and specialization is somatic hybridization, gene introgression, genomics, and plant microbe interaction. She has worked as Senior Research Fellow in Tropical Forest Research Institute, Jabalpur, from December 2005 to December 2007. She has worked as Senior Research Fellow again in National Bureau of Plant Genetic Resources in New Delhi from December 2006 to December 2008 to December 2010. Then she has developed, as research contributions, she has developed the 11 species of crop, and including Brassica cyno species such as Synapsis alba and Eruca sativa. She has developed first stable and first somatic hybrid of Brassica jointia and Synapsis alba. She has worked for integration of genes for yellow seed color from Synapsis alba to Brassica jointia. Then she has, to her credit, 22 publications which has been published in journals of national and international repute. And she has been awarded as DST Women Scientist Award in 2019 and 2010. So we are fortunate enough to have her with us, and I think she will discuss in detail, first with the PowerPoint, and then we will have some videos on the subject of today. Now I invite Dr. Pritesh to deliver her lecture. Today, we will overview on bacterial DNA, extraction of bacterial DNA, and amplification of DNA, then visualization of DNA. In bacteria, have two types of DNA. One is chromosomal DNA, and other one is plasmid DNA. Chromosomal DNA is a structural or functional unit of bacteria, which decide the structure function of bacteria. But plasmid DNA also sustain within bacteria. Some bacteria, eukarya and eubacteria, also have plasmid DNA. Plasmid DNA, you can see here, is a circular or double-stranded DNA molecule. This was coined by Lederberg in 1952, and size of the plasmid DNA vary from 1 kb to 1000 kb. If bacterial DNA, functional unit of bacterial DNA is chromosomal DNA, तो क्वेश्चन ये आता है कि प्लाज्मिड डीएनए का क्या फंक्शन है। प्लाज्मिड डीएनए बेसिकली बैक्टीरिया के सर्वाइवल को सपोर्ट करता है। जैसे कि प्लाज्मिड डीएनए में कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाए जाते हैं, जो कि एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में प्लाज्मिड को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसके कुछ एसेंशियल फीचर्स और भी हैं, जैसे कि इसमें ऑरिसी साइट होता है। ये ऑरिसी साइट बेसिकली ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, जो कि प्रमोट करता है
अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स और अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए, जिससे कि इसमें इजीली रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। सेकंड इसका फीचर है कि इससे सेलेक्टेबल मार्कर इसमें यूज किया जा सकता है। सेलेक्टेबल मार्कर जो है वो या तो हमारा कोई भी एंटीबायोटिक हो सकता है, जैसे कि एम्सिलिन, कैनामाइसिन, जो कि बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए हम इसे एंटीबायोटिक को एज ए सेलेक्टिव मार्कर यूज करते हैं। थर्ड इसका फीचर है मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। मल्टीपल क्लोनिंग साइट you can see here, here is two restriction site we can see in plasmid. One is restriction enzyme one site and another is restriction enzyme two site. इन दोनों साइट के बीच में हम यहाँ पे कोई भी एक स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए क्लोन कर सकते हैं, जिससे ये क्लोन फ्रेगमेंट इसी बैक्टीरियल प्लाज्मिड डीएनए में मल्टीप्लाई हो सकता है, जिसके बेसिस पे हमारा क्लोनिंग प्रोसीजर बेस करता है। लास्ट हमारा इसका फीचर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देन हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेशन। ये बेस होता है क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए के डीनेचुरेशन के डिफरेंशिएशन पे। एक्चुअली क्रोमोसोमल और प्लाज्मिड डीएनए के डीनेचुरेशन का डिफरेंशिएशन के बिहाफ पे हम इन दोनों को सेपरेट करते हैं, जिसके लिए हम एल्कलाइन लाइसिस मेथड यूज करते हैं। इसके लिए कुछ प्लाज्मिड आइसोलेशन किट्स भी अवेलेबल हैं, जिनमें कि अलग अलग सॉल्यूशंस हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो हमारा फर्स्ट मेथड है लाइसिस ऑन द बेसिस ऑफ लाइसिस, यहाँ पे बेसिकली हम 4 स्टेप यूज करते हैं। फर्स्ट इज हार्वेस्टिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल and resuspension that. After that, lysis of the bacterial cell, then neutralization of the cell, neutralization of plasmid, then clearing of the plasmid. इसके लिए जो हम सॉल्यूशन यूज करते हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीसस्पेंशन बफर, जो कि टीई बफर एंड आरएनएस ए होता है, इसमें टीई बफर में 50 माइक्रोमोलर ट्रिस एचसीएल देन 10 मिलीमोलर EDTA का मिक्सचर लेंगे और आरएनएस 10 माइक्रोग्राम और माइक्रोलीटर की कंसंट्रेशन का हम यूज करेंगे। इसके बाद हम इसे ट्रीट करते हैं SDS, जो कि एक डिटर्जेंट है, और साथ में 200 मिलीमोलर NaOH सॉल्यूशन। देन न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम यूज करेंगे 3 मोलर पोटेशियम एसिटेट एट द pH of 5. देन यहाँ पे हम एक सिलिका मेम्ब्रेन कॉलम को यूज करते हैं। इस कॉलम की प्रॉपर्टी है ये न्यूक्लिक एसिड को बाइंड करता है। इस कॉलम के साथ हम इस कॉलम को हम एक ट्यूब में लेंगे और कलेक्शन ट्यूब के अंदर कॉलम को लेंगे और उस कॉलम में डीएनए जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए है वो इसके साथ बाइंड करेगा। देन उस डीएनए को हम वॉश करेंगे यूजिंग 2 वॉशिंग बफर्स। तो अब हम आते हैं इसके प्रोसीजर पे। तो प्रोसीजर जैसे हम जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हार्वेस्ट करेंगे बैक्टीरियल सेल को। बैक्टीरियल सेल को हार्वेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले एक बैक्टीरियल प्लेट में इसे स्ट्रिक करेंगे और यहाँ से कोई भी एक कॉलोनी हम पिक करेंगे। उसके लिए हम पहले एक 50 ml ट्यूब लेंगे, जिसमें कि 5 ml लोरियल ब्रॉथ हमारा मीडियम होगा। उस मीडियम में हम 5 ml 100 ml पर माइक्रोलीटर कंसंट्रेशन का एम्सिलिन लेंगे, जो कि एक एंटीबायोटिक है। देन हम इसमें इस कॉलोनी को स्क्रैप करके या तो ग्लिसरॉल स्टॉक सॉल्यूशन के साथ या तो फिर डायरेक्टली उसमें इंक्यूबेट करेंगे। इस इंक्यूबेशन करने के बाद इस ट्यूब को 50 ml की ट्यूब को हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 300 RPM के शेकर पर इंक्यूबेट कर देंगे। आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन इस ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे
up to 5 minutes at 4000 gravitational force. Then सुपरटेंट को हम लेंगे और इस सुपरटेंट को रीसस्पेंस करेंगे, देन वर्टेक्स करेंगे थॉरोली फॉर सस्पेंशन। अब इसमें हम 200 माइक्रोलीटर लाइसिस बफर यूज करेंगे, जो कि सेल लाइसिस के लिए सेल लाइसिस करेगा। इसको लाइसिस बफर को ऐड करने के बाद ट्यूब को इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट करके मेन पर्पस है कि उसको बेसिकली मिक्स करना है। इसे हम 4 to 6 और 10 टाइम हम इन्वर्ट कर सकते हैं। देन इसे हम 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे इंक्यूबेट कर देंगे। जब हम इसे रूम टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करते हैं तो इसे हमें सेक नहीं करना है, क्योंकि सेक करने से जो इसके अंदर प्लाज्मिड है वो शेयर हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसे सेटल होने के लिए 5 मिनट रख देंगे और देखेंगे कि लाइसिस शुड अपीयर विस्कस। देन इसमें हम एक 350 माइक्रोलीटर न्यूट्रलाइजेशन बफर, जो कि बेसिकली पोटेशियम एसीटेट है, वो मिक्स करेंगे और उसे मिक्स करने के बाद 5 to 10 टाइम इसे इन्वर्ट करेंगे ट्यूब को, देन इंक्यूबेट करेंगे फॉर 5 मिनट अगेन। आफ्टर 5 मिनट centrifuge the tube at 12,000 gravitational for 10 minutes। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो इसमें हमारा डीएनए प्रोटीन, डीएनए बेसिकली मीन है हमारा यहाँ पे जो क्रोमोसोमल डीएनए है बैक्टीरिया का, प्रोटीन, सेल डेब्रिस यानी कि सेल मेम्ब्रेन एक्सेट्रा, ये इसमें प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। देन इस लाइसेट को हम एक कॉलम लेंगे। कॉलम बेसिकली हमने यहाँ पे स्पिन कॉलम दिखाया हुआ है, जो कि एक सिलिका मेम्ब्रेन है और इस सिलिका मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है कि ये एक्चुअली ये क्रोमैटोग्राफी बेस्ड कॉलम है और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये न्यूक्लिक एसिड को बाइंड करता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि लाइसिस ये बाइंडिंग का हमारा है। जब हमारा कॉलम को हम एक कलेक्शन ट्यूब में प्लेस करते हैं, इस कलेक्शन ट्यूब में जब हमारा न्यूक्लिक एसिड बाइंड हो जाता है तो इसे हम कलेक्शन ट्यूब में हम इसे प्लेस करते हैं। देन इसे हम 12,000 आरपीएम पे फॉर 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। उसके बाद इसे अगेन हम हमारा सॉल्यूशन है जिसे हम वॉश सॉल्यूशन 1 कहते हैं, उससे हम इसे वॉश करेंगे और देन वॉश करने के बाद 1 मिनट के लिए 13,000 आरपीएम पे हम इसे फिर से स्पिन करेंगे। देन इसे डिस्कार्ड करेंगे जो इसका लिपिड है एंड रिमूव द सुपरटेंट, जिसमें कि हमारा प्लाज्मिड अवेलेबल होगा। इस प्लाज्मिड को अगेन हम वॉश सॉल्यूशन 1 से वॉश करेंगे। देन इसके बाद इसे हम अगेन वॉश सॉल्यूशन 2, हमारा जो वॉश सॉल्यूशन 1 है इसमें हमारा NaCl है, MOPS है और 15% आइसोप्रोपेनॉल है। देन इसे हम अगेन वॉश सॉल्यूशन 2 से वॉश करेंगे। इसके बाद हम डीएनए को इल्यूट करेंगे। इसके लिए अगर हमारे पास 800 माइक्रोलीटर इल्यूशन बफर है तो इसमें हम 15% आइसोप्रोपेनॉल या 0.7 वॉल्यूम आइसोप्रोपेनॉल को ऐड करेंगे, जिसमें कि हमारा आइसोप्रोपेनॉल के बेसिकली ये हमें रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए में यूज होता है और यहाँ पे हमें डीएनए रीनेचर हो जाएगा और हमें डीएनए प्रेसिपिटेट होगा हमारे ट्यूब में। देन हम इसे 12,000 आरपीएम पे अगेन सेंट्रीफ्यूज करेंगे। इसके बाद हमें इसे फिर से वॉश करेंगे 70% इथेनॉल से एट 10,000 आरपीएम फॉर 10 मिनट। इसके नीचे जो पैलेट हमें मिलेगी ट्यूब में, इस पैलेट को हम एयर ड्राई करते हैं। एयर ड्राई या तो फिर हम इसे 37 पे ड्राई कर लेंगे। देन इसे रीडिजॉल्व करेंगे या तो टी बफर में या तो फिर डीआयोनाइज्ड वाटर में। देन इसको डिजॉल्व करने के बाद हम क्वांटिफाई करेंगे। इसे हमें क्वांटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। रिसेंटली अभी कई सारी मशीन्स है जैसे कि नैनोड्रॉप। अगर हमारे पास मशीन नहीं भी है तो हम इसे जेल पे लोड करके
लैम्डा अनकट की कंसंट्रेशन को मेजर करते हुए इसे हम क्वांटिफाई कर लेंगे। देन जब हमारे पास प्योर प्लाज्मिड है, तो इस प्लाज्मिड के एम्प्लीफिकेशन के तरीकों को हम डिस्कस करेंगे। अब प्लाज्मिड को एम्प्लीफाई करने के लिए बेसिकली बिफोर द 1983 एक अकेला जो मेथड था वो था क्लोनिंग। क्लोनिंग बेसिकली एक इन विवो मेथड है। इन विवो मीन्स जो हमारा प्लाज्मिड है वो केवल विद इन सेल ही हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर 1983 हमें इन विट्रो टेक्निक भी डेवलप हुई और हमारे पास इन विट्रो मेथड्स भी हमें मिले, जिनमें से एक है पीसीआर। पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को जो मशीन जिस मशीन में हम प्ले करते हैं वो है थर्मोसाइक्लर और पीसीआर मशीन्स। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक बहुत ही गेम चेंजर टेक्निक की तरह इवॉल्व हुई, क्योंकि बिफोर पीसीआर इन्वेंशन, पीसीआर मशीन से पहले हमारे पास अगर बायोटेक्नोलॉजी में हम बेसिकली देखें या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखें तो अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करेंगे तो हमारे पास या तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाली टेक्निक्स थी, जिसमें कि आरएफएलपी, जो कि बहुत ही एक्चुअली हम बहुत ही टाइम और लेबोरियस टेक्निक थी। देन दूसरी टेक्निक हमारे पास थी क्लोनिंग। लेकिन जैसे ही पीसीआर इन्वेंट हुआ तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इवन अगर हम कहें कि इंडिया में हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर पीसीआर इन्वेंशन के बाद ही इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश हुआ इन 1985। तो इस नोवेल टेक्निक को जिन्होंने डेवलप किया, इसके इन्वेंटर थे सर कैरी वी मुलिस। ये बेसिकली एक केमिस्ट थे, बायोकेमिस्ट थे, जो कि इनका पीएचडी और एमएससी डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री है। लेकिन बायोकेमिस्ट्री से पहले ये एस्ट्रोनॉमिस्ट भी थे। बेसिकली इनका फर्स्ट लेक्चर इन नेचर में पब्लिश हुआ, जो कि एक एस्ट्रोनॉमी का पेपर था। उसके बाद उसी के बिहाफ पे इन्होंने पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट किया। देन आफ्टर पीएचडी डिग्री इन्होंने एक बेकरी शॉप को ज्वाइन किया। उसके कुछ दिन के बाद इन्होंने मेडिकल फील्ड में एक प्राइवेट कंपनी सीटस को ज्वाइन किया और वहां पे ये ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड बनाने का काम किया करते थे। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड बनाने में ये एक एक करके चूंकि बना रहे थे, तो इन्होंने कभी मतलब थॉट आया कि क्यों ना हम इन ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को एक साथ बनाएं। तो बहुत टाइम तक सोचने के बाद इन्होंने एक कागज पेन लेके एक मल्टीप्लिकेशन किया और उस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से इन्होंने देखा कि अगर हम डीएनए को 10 टू द पावर 4 टाइम रेप्लिकेट करते हैं तो इसकी हम 1000 कॉपी बना सकते हैं, और अगर हम इसे 30 साइकिल्स रेप्लिकेट कर दें तो ये बिलियंस ऑफ कॉपी हमें मिल जाएंगी। और इसी अजम्पशन के बिहाफ पे ये अपना पीसीआर इन्वेंशन की तरफ अपना एक्सपेरिमेंट इन्होंने शुरू किया। लेकिन बहुत टाइम तक ये इस एक्सपेरिमेंट को करते रहे, क्योंकि ये पहले से क्योंकि बायोकेमिस्ट थे तो इन्हें मालूम था कि डीएनटीपीस को जोड़ के या स्ट्रिचिंग करके किसी भी पॉलीमरेज की वजह सहायता से हम डीएनए को रेप्लिकेट कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी कि इन्होंने जो इन विवो रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है, जो कि एक इकोलाई बेस्ड डीएनए पॉलीमरेज है, जिसे कि हम क्रेनो फ्रेगमेंट भी कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, इसको इन्होंने सिंथेसिस में पीसीआर सिंथेसिस के लिए यूज किया। लेकिन बहुत टाइम तक ये स्टिल फेल होते रहे। उसका मेन रीजन यही था कि इनका जो पॉलीमरेज था वो स्टेबल नहीं था। देन सडनली 16 दिसंबर को इन्हें थॉट आया कि
थर्मस एक्विटस से जो एक्सट्रैक्टेड पॉलीमरेज है वो थर्मोस्टेबल है। उन्होंने उस थर्मोस्टेबल एंजाइम को यूज किया, देन they got invented the PCR reaction और multiply the millions of copy। इसी इनकी रिसर्च के लिए इन्हें 1993 में नोबेल अवार्ड दिया गया, जो कि शेयर हुआ माइकल स्मिथ के साथ। यहाँ पे हम पीसीआर के प्रिंसिपल पे बात करेंगे। पीसीआर जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में समझा कि एक प्राइमर डायरेक्टेड इन विट्रो एंजाइमेटिक रिएक्शन है, यानी कि अगर हमें पीसीआर रिएक्शन को प्रोसेस करना है तो हमें इसमें 3 चीजों की आवश्यकता होगी। एक एंजाइम, बिकॉज दिस इज एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंजाइम यहाँ पे हमारा, हम जो बेसिकली एंजाइम यूज करते हैं वो है टैग पॉलीमरेज, जो एक्सट्रैक्टेड होता है थर्मस एक्विटस से। ये टैग पॉलीमरेज की इस टैग पॉलीमरेज की यूनिक फीचर ये है कि ये हीट टॉलरेंट है। हीट टॉलरेंट और हॉट स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया पाया जाता है थर्मस एक्विटस, उससे हम इसे आइसोलेट करते हैं। देन क्योंकि ये हीट स्टेबल है, तो जब हम डीएनए को डिनेचर करते हैं, यानी कि अगर हम डीएनए को हीट से डिनेचर करें तो हमें 95 डिग्री के अबव डिनेचरेशन के लिए टेम्परेचर लगेगा। तो हमें एक ऐसा ही एंजाइम चाहिए होगा जो कि डीनेचर, जब डीएनए डिनेचर होगा और उसका टेम्परेचर अबव 95 और 95 अप्रॉक्स होगा, तब ये स्टेबल रहे। और बेसिकली इसमें जो मशीन यूज होती है, उस मशीन का कोई बहुत ज्यादा काम ना होके सिर्फ हीटिंग और कूलिंग का फंक्शन है, यानी कि ये एक फिक्स टेम्परेचर को बार बार हीट करती है, देन कूल करती है, देन उस पे बार बार रिपीटेड साइकिल, मतलब थर्मल साइकिल, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है। थर्मल मीन्स टेम्परेचर और साइक्लर मीन्स क्योंकि इसका साइक्लिंग को ये रिपीट कर रहा है, इसलिए इसे थर्मोसाइक्लर भी हम कहते हैं। और दूसरा इसका नाम है पीसीआर मशीन। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हमें क्या क्या कंपोनेंट की जरूरत होगी। तो बेसिकली इसके 5 इंग्रेडिएंट हैं। जैसे कि हम डीएनए रेप्लिकेशन में देखते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हमें एक टेम्पलेट डीएनए लगता है, देन उसमें एक प्राइमेस एंजाइम होता है जिसे हम आरएनए प्राइमर भी बोलते हैं। सेम प्राइमर वो यहाँ यूज होता है। देन टैग पॉलीमरेज होता है। टैग पॉलीमरेज जो हमारे रेप्लिकेशन में यूज होता है, वो टैग पॉलीमरेज बेसिकली टैग पॉलीमरेज बंद होता है, लेकिन उसके साथ पॉलीमरेज 3 का भी फंक्शन रहता है, जो कि एक एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज है। देन हम यहाँ पे यूज करेंगे पीसीआर बफर। पीसीआर बफर का काम है जो रिएक्शन हमारी चलेगी उसके लिए फेवरेबल कंडीशन मेंटेन करना। देन इसमें हमें जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि डीएनटीपीस, डी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेज, जो कि डीएनए में होते हैं एटीपी, सीटीपी, जीटीपी और टीटीपी। अब चूंकि ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है, तो जैसा कि हम एंजाइम एक्टिवेशन में पढ़े हैं कि एंजाइम के लिए एक कोफैक्टर की भी जरूरत होती है, तो हम यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड को एज ए कोफैक्टर यूज करते हैं। देन इसको हम डाइल्यूट करते हैं डीआयोनाइज्ड वाटर से। अब यहाँ जो हमारा प्राइमर है वो एक शॉर्ट स्ट्रेच डीएनए सीक्वेंस है, जो कि प्राइमर रिएक्शन को इनिशिएट करता है। बेसिकली इसका जो काम है वो है 3' OH फ्री प्रोवाइड कराना टू अटैच द न्यूक्लियोटाइड। यानी कि जैसे हम रेप्लिकेशन में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोटाइड 3' OH पे आके बाइंड करता है, ठीक वैसे ही ये प्राइमर हमारे टेम्पलेट डीएनए को 3' फ्री OH प्रोवाइड कराता है। सेकेंड है इसमें डीएनए न्यूक्लियोटाइड। डीएनए न्यूक्लियोटाइड बेसिकली डीएनटीपीज है, जो कि डीएनए बेसिस है और बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डीएनए के, जो कि एक के बाद एक स्ट्रेच होके हमारे डीएनए को
रिसिंथेसिस करने के लिए यूज किए जाते हैं, जो है AGCT। टैग पॉलीमरेज है। टैग पॉलीमरेज बेसिकली हम जो टैग पॉलीमरेज, टैग जो इसका नाम है वो जैसे हमने पहले बताया थर्मल एक्विडस से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है, इसलिए इसे टैग पॉलीमरेज कहते हैं। इसके अलावा दो पॉलीमरेज और हैं जो कि हीट स्टेबल हैं और इनको भी हम पीसीआर रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। फिर हम इसमें अगेन जो रिएक्शन मिक्सचर को कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए हम देते हैं पीसीआर बफर। पीसीआर बफर केवल फेवरेबल कंडीशंस के लिए इंश्योर करता है। देन इसमें कोफैक्टर है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इस मिक्सचर को हम कैसे मिक्स करेंगे? ये हमारा एक पीसीआर ट्यूब है। इस पीसीआर ट्यूब में हम सबसे पहले टेम्पलेट डीएनए को पीसीआर ट्यूब में लेते हैं। इस टेम्पलेट में हमारा मिनिमम एक किसी भी रिएक्शन के लिए हमें 50 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर डीएनए की जरूरत होती है। तो बेसिकली हमारा जो डीएनए डाइल्यूशन होता है वो 25 नैनोग्राम का हम वर्किंग कंसंट्रेशन बनाते हैं। तो 50 नैनोग्राम के लिए 2 माइक्रोलीटर डीएनए हम यहाँ यूज करते हैं। 2.5 माइक्रोलीटर। अगर हम रिएक्शन 25 में लगाएंगे तो हम इससे थोड़ा सा उसी के कंपेरेटिव ऐड कर लेंगे। अगर हम रिएक्शन 20 की लगाएंगे तो हम इसे 2 लेंगे। अगर हम रिएक्शन 25 में लगाएंगे तो 2.5 लेंगे। देन इसका सेकेंड जो पार्ट है वो है पीसीआर मिक्स और मास्टर मिक्स जिसे हम कहते हैं। मास्टर मिक्स में बेसिकली इनिशियल हम ये मास्टर मिक्स प्रिपेयर करते थे, लेकिन अभी मास्टर मिक्स कुछ कंपनियां प्रिपेयर्ड रेडीमेड मास्टर मिक्स प्रोवाइड करती हैं। अगर हमें मास्टर मिक्स प्रिपेयर करना है तो इसमें हम लेंगे पीसीआर बफर जो कि 10x में है। प्राइमर हमारा होगा जो कि फॉरवर्ड रिवर्स है। जो फॉरवर्ड रिवर्स प्राइमर हम यहाँ यूज करते हैं वो 10 मोल पर माइक्रोलीटर होता है। इस प्राइमर को हम या तो फॉरवर्ड रिवर्स अलग अलग ऐड कर लेंगे अथवा रिवर्स और फॉरवर्ड का एक मिक्सचर हम लेंगे और उसको हम मास्टर मिक्स में ऐड कर देंगे। देन हमारा थर्ड कंपोनेंट है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज की अलग अलग कंसंट्रेशन में हमें अवेलेबल होता है। यहाँ पे हमने 5 यूनिट पर माइक्रोलीटर की कंसंट्रेशन का टैग पॉलीमरेज लिया है। देन हम लेंगे डीएनटीपी मिक्स। ये डीएनटीपी या तो हम अलग अलग ले सकते हैं, जैसे एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और टीटीपी, लेकिन या फिर हम इसका मिक्सचर ले सकते हैं जो कि 2.5 मिलीमोलर ईच होगा, यानी कि ये जो मिक्सचर की कंसंट्रेशन होगी वो 10 मिलीमोलर हो जाएगी। देन हम इसमें ऐड करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड और डीआयोनाइज्ड वाटर। ये हम पिक्टोरियल व्यू हम इसका देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा डीएनए हमने ऐड कर दिया, देन टैग पॉलीमरेज को ऐड किया, देन हमारे चारों बेसिस को हमने न्यूक्लियोटाइड को ये ऐड किया, देन हमने प्राइमर को ऐड किया और ये है हमारा मास्टर मिक्स और पीसीआर रिएक्शन का कंपोनेंट का एक टेबल। देन इसको हम पीसीआर मशीन में प्लेस करेंगे। तो पीसीआर में मशीन में प्लेस करने के लिए बेसिकली जो पीसीआर मशीन में हमें कंडीशंस यूज करनी है वो पीसीआर मशीन फंक्शन करती है 4 कंडीशंस पे, जैसे सेम वैसे ही जैसे कि हमारा मतलब रेप्लिकेशन में हम करते हैं। फर्स्ट इसमें होता है डीनेचुरेशन, सेकेंड इसमें होता है अनिलिंग और थर्ड होता है इसमें एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन मीन्स हमें जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसे हमें सिंगल स्ट्रैंड में डीनेचर करना होगा। तो इसे हम हीट के थ्रू डीनेचर करते हैं। ये कर्व हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अगर हम इसे अबव 90 डिग्री टेम्परेचर देते हैं तो ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में सेपरेट हो जाता है। इस सेपरेट सिंगल स्ट्रैंड को हम प्राइमर को इससे बाइंड कराएंगे। प्राइमर बाइंडिंग को हम अनिलिंग कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू प्राइमर टीएम, जैसे कि हम इसे अनिलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं। प्राइमर टीएम बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारे प्राइमर में जो बेसिस हैं, जितने बेसिस हमने यूज किए हैं उन बेसिस के यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है इसका ये डिटरमाइन होता है।
जैसे कि अगर हम जीसी न्यूक्लियोटाइड को ज्यादा यूज करेंगे तो अब यहाँ पे जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है, तो उसके लिए हमें हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। अगर हम 80 को यूज करेंगे तो 80 डबल बॉन्डिंग से है, तो यहाँ टेम्परेचर हमारा कम रहेगा। तो अनिलिंग टेम्परेचर बेसिकली हमारा जो उसका प्राइमर का सीक्वेंस है उस पर डिपेंड करता है, और ये हमारे डीनेचर एक्सटेंशन टेम्परेचर से थोड़ा सा बिलो होता है। देन थर्ड स्टेप हमारा आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन और एम्प्लीफिकेशन सेम स्टेप है। इसमें हमारा सारा न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि अनिलिंग हो गई प्राइमर की अनिलिंग होने के बाद हमें एक 3 प्राइम OH फ्री मिल गया है, जिसपे कि हमें जिसपे कि पॉलीमरेज एंजाइम को एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड को अटैच करना है। ये एक तरह से स्टिचिंग करके चेन की तरह से बनता जाएगा, और देन इसकी बहुत मल्टीपल कॉपी 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि 72 फेवरेबल कंडीशन है फॉर टैग पॉलीमरेज, इसलिए हम इसे 72 पे एक्सटेंशन रखेंगे। और इन साइकिल्स को हम अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम रिपीट करेंगे, मोस्टली 30 to 40, जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी, हमें जितना एम्प्लीफायर की जरूरत होगी उसके हिसाब से, मतलब जितनी कॉपीज हमें चाहिए उतनी कॉपीज में हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन इन साइकिल्स के बाद हम 72 पे फॉर 5 मिनट एक्सटेंशन देंगे, देन इसे हम होल्ड करेंगे एट 4 डिग्री टेम्परेचर। ये हमारा ग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंड है, जो कि यहाँ से, चलिए ये पिक्चर थोड़ा सा खींचिए। ये है हमारा डबल स्ट्रैंड। यहाँ हमने इसे डीनेचर किया एट 95 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इनके बीच का बॉन्डिंग ब्रेक हुआ और ये दोनों सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हुए। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे जो रेड कलर से हम देख रहे हैं, ये हमारा प्राइमर है जो अनिल हुआ है आके। ये हमारे बेसिकली फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों प्राइमर है। ये हमारे दोनों स्ट्रैंड पे आके बाइंड कर जाएंगे, और प्राइमर के बाइंड करने के बाद टैग पॉलीमरेज आके इस पे एक के बाद एक अपने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना शुरू करेगा, और हमारा फिर से एक नया स्ट्रैंड हमें नया डीएनए हमें मिलेगा, जिसमें कि एक मतलब हाइब्रिड डीएनए होगा, जिसमें एक पुराना स्ट्रैंड रहेगा और एक हमारा नया स्ट्रैंड रहेगा। यानी कि हमारे पास 2 डीएनए स्ट्रैंड हुए, दोनों डीएनए स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड उनका पुराना है और एक उनका नया स्ट्रैंड है। तो इस तरह से हम अपने डीएनए की कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ टाइप्स आता है पीसीआर का। तो पीसीआर बहुत टाइप्स का पीसीआर है, जिसमें कि करीब 20-22 पीसीआर है, जिनमें से बेसिकली 4 या 5 पीसीआर बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ लिया है रियल टाइम पीसीआर। आरटीपीसीआर कोरोना टाइम में हम लोगों ने देखा कि आरटीपीसीआर से हर कोई फेमिलियर है। आरटीपीसीआर में एक क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर है, और देन एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर है। देन इसमें नेस्टेड पीसीआर है, सिंगल सेल पीसीआर है, फास्ट साइक्लिंग पीसीआर है, मिथाइलेशन स्पेसिफिक पीसीआर है। मिथाइलेशन स्पेसिफिक मींस कि जब हमारे कहीं भी डीएनए में मिथाइलेशन होता है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए हमें जो स्पेसिफिक पीसीआर लगता है वो हमारा मिथाइलेशन स्पेसिफिक पीसीआर है। देन हाई फिडेलिटी पीसीआर है, उसके आगे वेरिएबल नंबर्स ऑफ टैंडम रिपीट्स है। देन हॉट स्टार पीसीआर है, एसिमेट्रिक पीसीआर है। ऐसे करके ये करीब हमारा 22 to 25 पीसीआर मशीन्स का वर्जन है। अब जब हमने कॉपीज को एम्पलीफाई कर लिया है तो इसे हमें देखना कैसे है। जो हमारा पीसीआर प्रोडक्ट हमारा निकला है, उस पीसीआर प्रोडक्ट में हम एक को देखने के लिए कि वो पीसीआर डीएनए को देखने के लिए हम इसे रन कराते हैं जेल पे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स को सेपरेट करता है अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। डीएनए को फ्रीक्वेंटली सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो एग्रोस है, एग्रोस जेल को बेसिकली मॉलिक्यूलर सीप कहा जाता है। जिस तरह से कि हम दूसरी सीप्स को यूज करते हैं, वैसे ही एग्रोस जेल को यूज किया जाता है एज ए मॉलिक्यूलर सीप, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से हम किसी भी मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए इसे हम यूज कर सकते हैं। ये एग्रोस एक्सट्रैक्टेड होता है बेसिकली एल्गी से इन पाउडर फॉर्म। देन इसे हम हीट कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक जेली सब्सटेंस में। इस जेल को हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से, कंसंट्रेशन के हिसाब से बनाते हैं। बेसिकली इसे 0.8 परसेंट से लेके 3.5% के हिसाब से एग्रोस को हम यूज करेंगे। यानी कि हमें अगर 100 ml जेल बनाना है तो उसमें हम 0.8 ग्राम एग्रोस को लेंगे, या फिर डिपेंड करेगा हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बिहाफ पे, मे बी ये हो सकता है 3.5 तक। देन इस जेल को, ये हमारा जेल कास्टर है। जब जेल हमारी बॉयल हो जाती है अच्छे से तो इस जेल कास्टर ट्रे में हम पोर करेंगे। देन ये हमारा कॉम है। ये कॉम बेसिकली बेल क्रिएट करने के लिए एक तरीका है। इस कॉम के वजह को फिट करके हम अपने जेल में बेल को क्रिएट करते हैं। ये हमारा यूनिट है एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। इस यूनिट में हमारा बफर होता है जिसे बेसिकली हम यूज करते हैं टी बफर, ट्रिस और ईटीटीए बफर। इस सेम बफर को हम यूज करते हैं जेल को डिसॉल्व करने के लिए। 1x बफर हम जेल को डिसॉल्व करने के लिए लेंगे और सेम बफर हम इस यूनिट में लेंगे एज ए। देन हम लोड करेंगे, तो लोड करने के लिए ये हमारे पास पाइपेट है। इस पाइपेट को हम 10 माइक्रो लीटर के हिसाब से पर बेल में ईच सैंपल को हम लोड कर देंगे। इसे लोड करने के बाद हम इसमें करंट थ्रू द पावर सप्लाई पास करेंगे, और इस करंट को हम डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू हमारी जेल यूनिट। इसे हम 50 to 150 वोल्ट के करंट हम इसमें पास कर सकते हैं। अगर हमारा जेल यूनिट छोटा है तो हम करंट का वोल्ट कम रखेंगे, और अगर जेल यूनिट ज्यादा है तो इसे हम 150 और 180 तक एक्सिट कर सकते हैं। देन आएगा विजुअलाइजेशन। तो जब डीएनए हमने जेल पे चला लिया तभी भी हमें डीएनए दिखाई नहीं दिया। इसे देखने के लिए अब हमारे पास जो रिसेंट वर्जन है वो है जेलडॉक का। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे भी हम डीएनए को देख सकते हैं। ये जो जेलडॉक एक चैम्बर है जिसमें कि नीचे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आप देख सकते हैं। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूनिट असेंबल है। देन इसके ऊपर यहाँ पे कैमरा है। जब हम इसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे एक्सपोज करेंगे तो यूवी लाइट के थ्रू डीएनए, क्योंकि इस डीएनए में जब हमने लोड किया है तो इसमें एक डाई है जो कि इथिडियम ब्रोमाइड, उसको हमने लोड करते टाइम ऐड किया है, जिसकी वजह से ये हमें यहाँ यूवी लाइट से विजुअलाइज होगा। तो हमें ये एक बैंड की फॉर्म में दिखाई देगा, और इसको ये कैमरा कैप्चर करेगा, जो कि हमें इससे जो अटैच कंप्यूटर है उस पे इसका पिक्चर हमें मिल जाएगा, जो हम देखेंगे कि ये इस तरह का पिक्चर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली ये जो प्राइमर हमने यूज किया है ये स्पेसिफिक है एक सिंगल पेरेंट के लिए। यानी कि यहाँ पे जैसे कि मैम ने इनिशियल बताया कि हमारा जो काम था वो साइनेपस अल्वा जो बाइल मेंबर है ब्रेसिकेसी का, और दूसरा है कल्टीवेटेड ब्रेसिका। तो जो ये फर्स्ट सैंपल है ये साइनेपस अल्वा का सैंपल है, और जो ये सेकेंड सैंपल है ये ब्रेसिका जुन्सिया का सैंपल है। तो यहाँ ये जो प्राइमर है ये स्पेसिफिक है हमारा उसके लिए, साइनेपस अल्वा के लिए। तो ये दोनों पेरेंट इनिशियली एक्चुअली ये अलग अलग प्राइमर्स हैं। ये सारे प्राइमर की स्क्रीनिंग के लिए हमने जेल लगाया था। तो ये एक प्राइमर है, ये दूसरा प्राइमर है, ये तीसरा प्राइमर है। इस तरह से क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनके सबके मॉलिक्यूलर वेट्स अलग अलग है और इनका बैंड साइज भी अलग है, तो ये सारे प्राइमर्स अलग अलग है और हमने दो पेरेंट्स में एम्पलीफाई किए हैं। तो ये जो फर्स्ट पेयर है हमारा, ये फर्स्ट प्राइमर हमारा साइनेपस अल्वा का है। तो इस प्राइमर को हमने बेसिकली जो साइनेपस अल्वा का सीक्वेंस नहीं था अभी तक अवेलेबल, उस सीक्वेंस को हमने मतलब रॉ सीक्वेंस से असेंबल किया और उसको असेंबल करके हमने प्राइमर डिजाइन किया।
तो इस प्राइमर जो सीक्वेंस था हमारा, हमने उसे ब्लास्ट किया जुन्सिया के सीक्वेंस के साथ, और जो अनमैच्ड सीक्वेंस था, मतलब जो जुन्सिया के अलावा सीक्वेंस था सैनेफेस-अल्वा का, वो स्पेसिफिक हो गया टू सैनेफेस-अल्वा। उससे हमने लिया ये प्राइमर और इस प्राइमर को डिजाइन कर लिया। अब ये प्राइमर हमारा केवल एम्पलीफाई होगा सैनेफेस-अल्वा में। अगर हम इसके साथ कोई भी कल्टीवेटेड ब्रासिका स्पीसीज लेंगे तो ये प्राइमर नहीं एम्पलीफाई होगा। ये जो नीचे आपको बैंड साइज दिखाई दे रहा है, ये केवल डीएनए का एक्चुअली ये जेल पूरा चला नहीं है, तो ये केवल डीएनए जहां तक मूव किया है, ये वो सैंपल है, बस केवल एम्प्लीकॉन हमारा यहाँ है। तो ये प्राइमर एक तो सिंगल एम्प्लीकॉन है, दूसरा ये स्पेसिफिक है एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए। सेम वे में हम अगर इस दूसरे प्राइमर पेयर को देखेंगे, तो ये प्राइमर पेयर भी ठीक वैसे ही सैनेफेस-अल्वा से डिजाइन्ड है, लेकिन ये पॉलीमॉर्फिक है। इसका सेम जो एम्प्लीकॉन है वो जुन्सिया में भी अवेलेबल है, लेकिन अलग-अलग साइज का है। मतलब ये अगर यहाँ पे 300 बेस पेयर है, तो यहाँ पे 280 बेस पेयर है। तो अगर हमें पॉलीमॉर्फिक के हिसाब से कोई स्टडी करनी है, यानी कि अगर हम इन दोनों की पॉपुलेशन को लेके चलेंगे, तो हमें पॉलीमॉर्फिक प्राइमर की जरूरत होगी, तो हम इसे ले सकते हैं। अगर हमें इंट्रोगेशन स्टडी करनी है, तो हम इस प्राइमर को ले सकते हैं। एक्चुअली डीएनए के पीसीआर के लिए का जो डिमेरिट है वो ये भी है कि हमारे पास अगर हम पीसीआर किसी भी उसका तभी कर सकते हैं जब हमारे पास उसका सीक्वेंस नोन हो, क्योंकि हमें वो प्राइमर चाहिए होगा, और वो प्राइमर केवल नॉन सीक्वेंस से ही बनेगा और नॉन सीक्वेंस ही डीएनए को एम्पलीफाई करेगा। तो इतनी सारी मेरिट्स के साथ डीएनए की एक जो पीसीआर की जो एक बेसिक डिमेरिट है, वो है कि हमारा नॉन सीक्वेंस ही उसमें एम्पलीफाई होगा, जिसका कि हमारे पास प्राइमर अवेलेबल होगा। कुछ एक तरह से कि हम कहते हैं कि आईएसएसआर प्राइमर होते हैं, जो कि कहीं भी एम्पलीफाई करते हैं, किसी क्रॉप का दूसरे क्रॉप में भी एम्पलीफाई हो जाता है। इस तरह का कुछ प्राइमर स्पेयर्स अवेलेबल हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम एसएसआर पे जाएं, एसएसआर मतलब सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, जो कि बहुत ज्यादा रिपीट्स हमें मिलते हैं किसी भी जीनोम में, उनके ब्याह पे हम जीनोटाइपिंग बेसिक स्टडी हम इस पे कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें नॉन सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी। Ma'am, thank you for giving me opportunity for presenting this slide. Basically show the purpose of this slide is showing the protoplast fusion. This cell is two type of protoplast. You can see here green one and colorless protoplast. This is from two species. One is from leaf and other is from hypocotyle. So you can see over here two type of protoplast, and this is the somatic hybrid plantlet, which is regenerated first time in symmetric hybrid form. And this regenerated plantlet is like that. This is the actual view of now of this plant. And this is planted in pot. After that, like that and that. Both these two pictures are genomic in situ hybridization. Genomic in situ hybridization, basically green yellow color is Synapse-alva chromosome, and red color is Brassica juncea chromosome. So ma'am, thank you so much. वेरी गुड प्रीतेश, वेरी नाइस। आप दो फील्ड्स में ऐसे काम कर रही हैं जो हमारे बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। एक तो पीसीआर और डीएनए का तो आप कर ही रही हैं, अभी आपने प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का भी नाम दे दिया। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में भी हम चाहेंगे कुछ आपसे आगे कहें, लेकिन अब हम आपको ऑफलाइन बनाना चाहेंगे और चाहेंगे कि कोरोना पीरियड जल्दी खत्म हो। Yes, ma'am. So now I am going to share the first video. I am sharing my screen. Students, our first video is from DHU Cytogenetics Lab, which will show in easy manner how to do the PCR functioning with the basic requirements and how we will proceed with the machine. Then second video will be from IARI, from Pritesh Lab, and you will see again the advanced method of PCR extraction. So I am sharing the screen for video. स्टूडेंट मैं आज आपको बताऊंगा कि
पीसीआर कैसे लगाते हैं। तो पीसीआर जनरली हम लगाते हैं कि हमारे सैंपल में जो डीएनए है वो एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए या फिर उसका प्रेजेंस एब्सेंस देखने के लिए हम पीसीआर लगाते हैं। पीसीआर लगाने के लिए जनरली हमको आइसोलेटेड डीएनए चाहिए, प्राइमर्स चाहिए, उसके अगेंस्ट कोई जीन को एम्पलीफाई कर रहे हैं, उस जीन का प्राइमर डिजाइन करके उसका प्राइमर्स फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर है। डीएनटीपीस चाहिए, ये टैग पॉलीमरेज है और ये टैग बफर है। इसके अलावा हमको मिलिक्यू वाटर चाहिए होता है। टोटल 6 चीज चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम मिलिक्यू वाटर डालेंगे। ये पाइपेट मैंने ये 2 to 20 माइक्रोलीटर वाले हैं। इसमें हम मिलिक्यू वाटर 14.9 माइक्रोलीटर डालेंगे। ये टिप्स है, ये 200 माइक्रोलीटर वाले 20 to 200 माइक्रोलीटर वाले हैं। पहले मिलिक्यू वाटर हम 14.9 माइक्रोलीटर डालेंगे। देन हम बफर डालेंगे 1 माइक्रोलीटर। ये 10 माइक्रोलीटर वाला पाइपेट है, इसमें बफर हम डालेंगे 1 माइक्रोलीटर। ये दिख रहा है तो भी दोनों में हमने बफर डाल दिया है। अब हम डीएनटीपीस डालेंगे 1 माइक्रोलीटर। डीएनटीपीस के बाद हम फॉरवर्ड प्राइमर डालेंगे। ये भी 1 माइक्रोलीटर डालेंगे। इसके बाद रिवर्स प्राइमर सेम 1 माइक्रोलीटर। हम डीएनए डालेंगे। सैंपल 1 के लिए सैंपल 1 वाला डीएनए डालेंगे। सैंपल 2 के लिए सेकंड सैंपल वाला डीएनए टेम्पलेट डालेंगे। और हम प्रेफर करते हैं सबसे लास्ट में एंजाइम डालें, ताकि एंजाइम को एक पर्टिकुलर बफर चाहिए, एक पीएच चाहिए होता है। वो बफर ये सब डालने के बाद ही एंजाइम अपना काम कर पाता है।
हर बार टिप चेंज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंटामिनेशन आता है। अब हमने सारे रिएजेंट्स डाल दिया है। इसके बाद पीसीआर ट्यूब का कैप हम क्लोज कर लेंगे और इसको एक स्पिन दे देंगे। ये हमारा पीसीआर ट्यूब का स्पिन विन है। हम लोग इसको शॉर्ट स्पिन के लिए यूज करते हैं ताकि जितने भी रिएजेंट डालें सब ट्यूब के नीचे आ जाए, सब अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा थोड़ा बबल्स होता है, इसको हम स्लाइड टैप करके बबल को निकाल सकते हैं। फिर एक शॉर्ट स्पिन देंगे ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम चलेंगे पीसीआर मशीन के और पीसीआर मशीन में ये सेट करेंगे। अब हम ये सैंपल को पीसीआर मशीन में डालने जा रहे हैं एप्लीकेशन के लिए। ये पीसीआर मशीन ओपन किए, ये इसके वायल्स हैं और ये इसका प्लेट है जो हॉट रहता है। इसके जितना हम टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लेके जाते हैं 95, तो प्लेट को 10 डिग्री ज्यादा रखते हैं ताकि इसका एवापोरेशन को ब्लॉक कर सके। ये हम लगाए वेल में दोनों सैंपल्स को, इसको हम क्लोज कर दिए। अब पीसीआर के लिए एक प्रोग्राम सेट करेंगे। ये एक नया प्रोग्राम है। इसमें जनरली साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटिंक्शन। ये साइकिल से पहले हम इनिशियल डीनेचुरेशन देते हैं जो 95 डिग्री पे 1 मिनट होता है, और डीनेचुरेशन जनरली 15 सेकंड्स होता है 95 डिग्री पे। एनिलिंग यहाँ पे प्राइमर एनिल करता है टेम्पलेट के साथ, तो 55 to 65 डिग्री अकॉर्डिंग टू योर एनिलिंग टेम्परेचर ऑफ द प्राइमर्स, वो 15 to 30 सेकंड्स होता है। और ये एम्प्लीफिकेशन स्टेप है, ये जो जनरली टैग पॉलीमरेज का होता है 72 डिग्री पे एम्पलीफाई होता है। अकॉर्डिंग टू द पीसीआर फ्रेगमेंट साइज एनिलिंग ये टाइम रखते हैं। यहाँ पे जनरली 500 बेस पर का है तो 30 सेकंड्स। इसके बाद फाइनल एक्सटेंशन देते हैं हम 70 डिग्री पे 7 to 10 मिनट्स, और फाइनल स्टोरेज होता है 4 डिग्री पे इंफिनिटी टाइम के लिए। तो अब हम साइक्लिंग कंडीशन को 35 साइकिल के लिए रन करेंगे। ये पूरा प्रोग्राम सेट है, अब हम रन पे दबाएंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि रिएक्शन वॉल्यूम कितना है। रिएक्शन वॉल्यूम जनरली हमने 20 रखा है, और कवर टेम्परेचर हमने 105 डिग्री रखा है, क्योंकि 95 डिग्री से 10 डिग्री ज्यादा होना चाहिए। तो अब स्टार्ट रन कर रहे हैं। अब रन स्टार्ट हो गया। तो अभी ये टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो ये 95 डिग्री जब पहुंचेगा तब जाके टाइम स्टार्ट होगा। अब ये दिखा रहा है कितना टाइम अभी रिमेनिंग है। जब टाइम स्टार्ट होगा तब ये टाइम दिखाएगा कितना टाइम अभी बाकी है। अब ये हीटिंग चालू हो रहा है। अब ये टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे टाइम दिखा देगा, टाइम 1 घंटा 4 मिनट बाद ये पूरा एम्पलीफाई होकर हमारा खत्म होगा। वैसे ये आफ्टर 1 आवर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। So you have seen the video, all of you. Now it's time to start question answer session. I request Ms. Shibazaki and Ms. Atulya Chandra to have the questions with Dr. Pritesh. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम लेक्चर बहुत अच्छा था। हमने और हमारे सर ने काफी एंजॉय किया। हमारी एक स्टूडेंट है सेकंड ईयर की किसा जहरा, उन्होंने एक क्वेश्चन किया है व्हाई आरटी-पीसीआर मॉलिक्यूलर टेस्ट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डेड एंड लिविंग जेनेटिक फ्रेगमेंट ऑफ द वायरस। क्वेश्चन ये है प्रीतेश कि आरटी-पीसीआर टेक्निक लिविंग और डेड वायरस डीएनए फ्रेगमेंट में कोई डिफरेंस कर सकती है क्या? हेलो हेलो मैम, हियरिंग मी?
हाँ, आवाज आ रही है, बताओ। या मैम। मैम आरटीपीसीआर के थ्रू हमें लिविंग और डेड वायरस में डिफरेंशिएशन को डिटेक्ट करना है। हाँ यस हाँ। मैम। तो इसमें हम डेड वायरस का जो आरएनए हमारा डेड है, वो चूंकि हम उसके स्पेसिफिक प्राइमर के बिहाफ पे हम आरएनए को एम्पलीफाई करते हैं, और चूंकि वो आरएनए हमारा डेड जो आरएनए है, वो अगर हमारी कॉन्सेंट्रेशन ठीक से नहीं होगी तो हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। केवल हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मतलब एग्जैक्ट वैल्यू से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ये मतलब इसमें अवेलेबल है और नहीं है। So it can detect between dead and living. Only living virus, ma'am. Okay. Actually, because RNA based primers ना दिया, RNA based जो हमारा जीन है, वायरस का जीन है, जो कोरोना का जीन है, उससे हमने प्राइमर को बनाया। तो वो जो अवेलेबल होगा वहां पे, जिस वायरस अगर अवेलेबल है तो वो पॉजिटिव देगा, अगर वो डेड है वायरस तो वो नेगेटिव देगा। ठीक ठीक है ठीक है। ओके पहले मैम। अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद करो प्रीतेश, तुम्हारा चेहरा नहीं आ रहा। ओके मैम, ओके। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन भावना तिवारी की तरफ से है, व्हाई प्राइमर बाइंड्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर? यस, एक्चुअली वी डिजाइन प्राइमर। मैम, हाँ सुन रहे हैं, बोलो। मैम आ गया? हाँ आ गया। यस मैम। हाँ, यस मैम। मैम हम लोग हाँ, सॉरी, जो टेम्परेचर है, स्पेसिफिक टेम्परेचर है हमारे प्राइमर का, वो प्राइमर हमने डिजाइन किया है अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोटाइड। टेम्परेचर जो हमारा प्राइमर में है, वो उसमें जितने भी हमारे न्यूक्लियोटाइड है, जैसे कि AC का डबल बॉन्ड है और GC में ट्रिपल बॉन्ड है, उसके ब्याप पे हम टेम्परेचर लेते हैं, और इस टेम्परेचर को हम जो हमारा एक्सटेंशन टेम्परेचर है उससे बिलो रखते हैं। तो इसीलिए ये टेम्परेचर हमारा वेरी करता है, यानी कि समहाउ ये 45 टू 65 तक ये वेरी करेगा। तो उसके बेसिस पे ही वो टेम्परेचर, मतलब उस जो हमारा प्राइमर है उसका जो टेम्परेचर है वही स्पेसिफिक है उसको अनील करने के लिए। अदर देन उस टेम्परेचर के वो प्राइमर वहां अनील नहीं होगा, और प्राइमर अनील नहीं होगा तो हमारा पॉलीमरेज उसे एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अलग अलग प्राइमर्स के लिए अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं। यस मैम, जब हम प्राइमर डिजाइन करने के लिए कंपनी को देते हैं, सिंथेसिस करने के लिए, डिजाइन करने के बाद, तो उस प्राइमर का एक टेम्परेचर हम उन्हें लिख के देते हैं। ओके। तो वो TM हम उसे कहते हैं। TM मीन्स मेल्टिंग टेम्परेचर। ओके। तो वो उस मेल्टिंग टेम्परेचर के बिहाफ पे ही हम रिएक्शन लगाएंगे। जो रिएक्शन हमारा उसमें फीड करेंगे हम PCR में, वो +-2 रहेगा। जैसे कि हमारे सारे प्राइमर अगर 60 पे नहीं है या 58 पे नहीं है, तो हम उसे मतलब जैसे कुछ प्राइमर हमारे 56 है, देन कुछ प्राइमर हमारे 60 है, तो हम उसे +-2 करके, यानी 58 उसका अनिलिंग टेम्परेचर सेट करेंगे PCR मशीन का। तो ये कहीं दिया हुआ होता है कि हमें किस प्राइमर के लिए कौन सा चाहिए? नहीं मैम, जैसे हमने जो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल है, इन टूल्स में आप जब किसी सीक्वेंस को डालोगे तो वो सीक्वेंस आपको प्राइमर सेलेक्ट करके देगा। पहले तो मैनुअल प्राइमर होता था, उसे डिजाइन करते थे। अभी कई सारे सीक्वेंस वो है, आ गए हैं टूल्स। जैसे प्राइमर 3 है, तो प्राइमर 3 में आपने कोई नोन मतलब वो सीक्वेंस डाल दिया और उस पर क्लिक किया कि आपको मतलब कितना प्राइमर डिजाइन करना है, तो उसमें से जो जो प्राइमर आपके निकलेंगे, उन प्राइमरों को वो उसकी सारी स्पेसिफिसिटी के साथ, मतलब कि उसका TM क्या है, उसका GC कंटेंट क्या है, और ये सब वो आपको बता देता है। लिख के देगा। हाँ, और उसी को बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जरिए जान सकते हैं। यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। अगला क्वेश्चन हमारी स्टूडेंट दीपशिखा शर्मा की तरफ से है। ये पूछ रही हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ DNA सैंपल्स आर यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन? Any type of DNA samples used for amplification, PCR amplification according to primer. अगर आपके पास किसी भी DNA का सीक्वेंस है और उसका प्राइमर आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसे एम्पलीफाई कर सकते हैं थ्रू PCR। उसके लिए बेसिकली आपका वो सीक्वेंस नोन होना जरूरी है। कोई भी DNA सीक्वेंस जिसको आपको एम्पलीफाई करना है, उसका सीक्वेंस आपको प्राइमर बनाने के लिए पता होना जरूरी है। अगर वो सीक्वेंस, प्राइमर सीक्वेंस आपके पास नहीं होगा, तो उसे आप प्राइमर मतलब उसका डिजाइन नहीं कर पाएंगे, देन उसे एम्पलीफाई नहीं कर पाएंगे। जी, एक और सवाल, लॉन्ग DNA फ्रेगमेंट्स के लिए बेस्ट पॉलीमरेज कौन सा हो सकता है? PFU।
PFU एक्चुअली थर्मोस्टेबल हमारे पास 3 पॉलीमरेज है। एक तो बेसिक पॉलीमरेज है टैग पॉलीमरेज, देन टैग पॉलीमरेज का एक लिमिट है, वो कुछ छोटे फ्रेगमेंट को ही एम्पलीफाई करता है, क्योंकि टैग पॉलीमरेज में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज नहीं है। लेकिन PFU जो कि पायरोकोकस फ्यूरोसिस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये भी थर्मोस्टेबल है और इसको हम हाई फिडेलिटी, मतलब इसमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है और जो हमारा लॉन्ग स्ट्रेच है डीएनए का, उसको भी हम इससे एम्पलीफाई कर सकते हैं। Okay, ma'am. ओके मैम। मैम एक और क्वेश्चन है, कैन वी यूज एनीथिंग एल्स एट द प्लेस ऑफ एग्रोस? एनीथिंग एज प्लेस ऑफ एग्रोज? यस यस मैम। सेकेंड हमारा इसका ऑप्शन है कि जेल राइट हम ले सकते हैं, लेकिन जेल राइट में एक्चुअली प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि जेल राइट सिंगल मेल्टिंग है। अगर आप एक बार मेल्ट कर लिया तो आप उसे यूज नहीं करेंगे। देन इसका जो दूसरा जेल है जो हम प्रोटीन एक्सट्रैक्शन में बेसिकली यूज करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे, थोड़ा सा ये लेबोरियस टेक्निक है, SDS वाला, वो भी हम डीएनए को रिजॉल्व करने के लिए यूज करते हैं अच्छी लैब्स में। जैसे कि हम ने भी कभी यूज किया, डॉक्टर PK गुप्ता सर की आप लोगों ने किताब पढ़ी होगी, उनके लैब में बेसिकली ये लोग यूज करते हैं SDS। SDS का क्या होता है कि जो जेल होती है उसे आप स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, और कभी भी आपको उस जेल को रेप्लिकेट करना है या उसे स्टोर करना है तो आप उसे निकाल सकते हैं। क्या हम अगर को यूज कर सकते हैं? हाँ मैम, अगर ही तो है। एगरोस जो है अगार तो है नहीं मैम, एक्चुअली अगार में प्रॉब्लम ये है कि वो अगर उसका क्वालिटी अच्छा नहीं, प्योरीफाई नहीं है तो यूज नहीं होगा। अगर क्रूड मतलब प्योरीफाई है, अच्छा प्योरीफाई है तो हम इसे यूज कर लेंगे, लेकिन सिंगल यूज के लिए। एक्चुअली एग्रोस बेसिकली परफेक्ट इसलिए है कि इसे हम मल्टीपल यूज करते हैं। जैसे हाँ, एक जेल को हमने लिया, फिर उसे हमने फिर से रीमेल्ट किया, फिर से उसमें डीएनए लोड किया, इसे हम हाँ 4 to 5 रीयूज कर सकते हैं। लेकिन अगार है उसे हम सिंगल टाइम यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी का अगार। ओके मैम। मैम PFU मोर एफिशिएंट है टैग पॉलीमरेज से? यस, PFU को हम बेसिकली बोलते हैं फ्यूजन एंजाइम। तो क्लोनिंग जहां हम करते हैं, जिसमें कि हमें एग्जैक्ट कॉपी चाहिए होती है, वहां PFU यूज करते हैं। इवन क्लोनिंग में अगर हमारा फ्रेगमेंट बड़ा भी है, जैसे कि 1 KB का बड़ा फ्रेगमेंट है, 1000 बेस पेयर से ज्यादा है, तो भी हम PFU यूज करते हैं। ओके मैम, थैंक यू। एंड मैम एक क्वेश्चन और है, डज मेथाइलेशन अफेक्ट PCR? हाँ यस, PCR को मेथाइलेशन अफेक्ट करता है, क्योंकि एक्चुअली इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी टैग पॉलीमरेज में नहीं है। क्योंकि टैग पॉलीमरेज हमारा वो प्रूफ रीडिंग नहीं कर रहा है, वो केवल जोड़ता जा रहा है, और जिसमें एरर का 10 to the power 4 का जो एरर हम रेप्लिकेशन में पढ़ते हैं, वैसे ही एरर यहाँ पे हमें डिटेक्ट होता है। इसी के लिए हम इसे मल्टीपल कॉपी, मतलब बहुत सारी साइकिल चलाते हैं, जिससे कि वो एरर रेट कम हो जाए। ओके, थैंक यू मैम। So I think this finished the question answer round, Shiba. Yes ma'am. Okay, so thank you Shiba and thank you Atulya. I think we are now going towards the concluding. So Pritesh, from my personal side, very great thank you to all. बहुत एफर्ट्स हमने किए, बट आई थिंक हमने प्रोग्राम को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर लिया और कोई भी किसी भी बीच में हमको कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आया. सो आई होप वी विल मीट यू अगेन. Definitely we will meet you again, and this time offline. Okay? Okay ma'am. Thank you. Good night ma'am. Thank you.